you guys to the new episode of our podcast 90 plus 3. How are you going? How are you guys doing today this week? Good, good. How are you, Ayush? You wanted Yeah, to I'm fine. I'm just scared that COVID outbreak is postponing some matches. I hope it doesn't postpone or cancel the Premier League this season. Right, good timing. Hopefully now. Yeah, so we missed the midweek fixtures, but what we can do is we can talk about the Big Six teams, and then we can go ahead with each how they performed in the midweek as well as this week as well. So let's start with Manchester City. Hmm. So yeah, midweek, which fixture did they have midweek where Bernardo Silva scored? Last week they had Watford away, I think. City had Watford away, and this week they had Wolves at home. So yeah, word thoughts about City because they are slowly. I think they're not getting those like even yesterday if we see against Wolves, they're not getting those pretty 3-0 or 4-0, but they're getting away with the results and they're doing what is required in this period, in this period where the fixture pile up comes in. So yeah, thoughts about City. Yeah, I mean City playing the same way. Bernardo Silva is on fire, and like we've mentioned before, David Silva का जो रोल था, then David Silva के बाद De Bruyne निभाता है, then De Bruyne injured है तो Foden निभाता है, Foden नहीं है तो Gundogan नहीं है तो Bernardo Silva. It's like a systems manager does his things. मतलब वो player पे depend नहीं होता. Even if De Bruyne जैसा player भी injured है, तो he keeps Bernardo in there to do his job. बाकी 3-1 and Watford, हमेशा एक चीज बोलूंगा, राइनरी में एक बात तो है ब्रो, हमेशा जो अपना सेट करके आता है ना, he goes for the attack. He does not just मतलब वो कंटेन करने के उसमें नहीं जाता. तो I like that about Watford. And ये bravery से I hope कि Watford थोड़ा सा ऊपर ही रहे, मतलब relegate ना हो जाए. सिटी का तो भाई क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा डिफिकल्ट है, but yeah, it's good to see Watford how they play. Still being brave even if they're fighting a battle already with relegation. And सिटी का भाई लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सीजन में थोड़ा कुछ होना चाहिए जो सिटी को थोड़ा सा धक्का पड़े, तो थोड़ा कुछ फॉर्म ऐसा हो, नहीं तो फिर लिवरपूल, सिटी, चेल्सी, दे आर जस्ट लाइक क्रूजिंग. So yeah, usual 3-1 against Watford and then Wolves. I think Suyash more or less summed up the Watford match. What I would like to talk about is the Wolves match. I think City got lucky there. It wasn't a penalty at all. It hits here and you give a penalty. And there is no conclusive evidence to overturn the on-field umpire's decision. The on-field umpire is stupid. Yeah, I think the rule in itself is a little off, so to put it, because you can't. They are claiming that they need a entire conclusive evidence to overturn the decision. It's like evidence, but this in itself is not a handball. Then what do you need? What else do you need? I think Wolves got wrong. They were easily keeping City at bay and they were playing very well defensively, similar to what they were against Liverpool. But they were unlucky. Even Jimenez yellow card was not a yellow card, and the second yellow card was Jimenez stupidity. Yeah. But Wolves का एक चीज है ब्रो, Wolves का डिफेंस बहुत ही इंप्रेसिव है. लिवरपूल भी जस्ट could have scored only one goal. सिटी भी एक ही मार पाई. तो Wolves FPL में Wolves डिफेंडर टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन अभी आयुष ने सुन लिया है तो मैं भी नहीं खरीदूं, क्योंकि आयुष खरीद लेगा. वो खरीदेगा. मैं उसको रखने वाला था, इसलिए सिटी के अगेंस्ट नहीं रखा, बच गया. भाई प्लीज मत खरीदना, हम लोग तो ऊपर जाए, हम लोग Wolves का डिफेंडर. यार ऐसा बोल के ऊपर आ गए हैं अभी. हाँ बाय द वे. कौन मैं? हाँ मैं इस वीक अच्छा गया था. लास्ट वीक भी ठीक जा रहा है, स्टेबल जा रहा है. डेविड से अच्छा आ गया. हाँ ठीक है. So that was City. Next team. Yeah. Can we talk about your team or you would want it to be later? क्या भी करना है? कर ले, बीच में कर ले. यूनाइटेड को ऐसे बहुत टेस्ट देते हैं लोग. अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड ले, ये सेगवे सही है. मैनचेस्टर यूनाइटेड. So हाँ बताओ तुम लोग. कल का तो 1-0 ठीक है. And midweek वाला fixture भी let's discuss. Okay. Let's put it this way. So Rangnick का भी I think 2-3 games हो गया. So what are your thoughts? How do you see him improving the team? What are your initial thoughts about how he sets up the team? Is there what is he trying to bring? What is he trying to change? So you can discuss everything. Yeah, go on. मेरे हिसाब से तो फर्स्ट मैच फिर भी थोड़ा because people are looking for it, तो हम लोग थोड़ा प्रेस भी कर रहे थे. तो फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन के बाद जो मैच था अगेंस्ट पैलेस, वो भी थोड़ा सही था. मतलब इट वाज जस्ट थोड़ा बहुत प्रेसिंग ट्राई कर रहे हैं, बट वी गॉट अवे विद अ विक्ट्री एंड वी वर लाइक टाइम चाहिए. ऑब्वियसली अभी भी टाइम चाहिए, एक ही हफ्ता हुआ है. एंड
अभी जो मैच हुआ नॉर्विच के साथ भी नथिंग इम्प्रेसिव कुछ नहीं था. इट वाज लाइक ओले का टाइम से ही मेरा तो मैं ब्रो आई स्टिक विद दैट ओपिनियन. रोनाल्डो वो जगह खा रहा है एंड लाइक पीपल खा नहीं रहा, मतलब पीपल प्लेयर्स लुक टू पास टू हिम. मैंने आज इस बार तो इंस्टेंस भी 2 बार देख लिया कि रैशफोर्ड भी जा रहा है, भाग रहा है, ही ट्राइज टू कट इट बैक टू रोनाल्डो और ही ट्राइज टू क्रॉस इट. प्रेडिक्टेबल हो जाता है उससे. पीपल मार्क रोनाल्डो एंड देन वी कांट स्कोर. हम लोग वेर टू डिपेंडेंट ऑन हिम. So I will still stick to that issue. I hope Ragnick realizes that and sometime. But as long as your chances बन रहे तो वो एक तरीके से अच्छी बात है because you know he will finish it. He will finish it. और मतलब देख अगर 1-0 भी जीत रहे हैं यश, पूरा सीजन 1-0 जीते तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है. प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए. But it's just that मेरा आंख ऐसा बैठ गया ना तो I start noticing that only कि मतलब रैशफोर्ड भी कट बैक कर रहा है, ब्रूनो भी क्रॉस डाल रहा है और उसके बाद रोनाल्डो बहुत गंदा भी भागा. मतलब he was not playing well, not at all. कुछ अच्छा कर भी नहीं रहा. He scored a hat-trick if I'm not wrong. hat-trick against Norwich because मेरा कैप्टन था. क्या बात कर रहा है? फिर भी got bonus ना तो 9 points 18 हुआ. Yeah, he got 9 instead of Salah 8. So so I stand by that opinion, bro. He needs to be dropped. He needs to be dropped if you want fluid football. If Ragnick really wants to implement his philosophy, na, he'll need to be dropped. I still believe that. बाकी तो यूनाइटेड का ब्रो बेसिक था. इट फेल्ट लाइक सेकंड मैच तो इट फेल्ट लाइक ओले ही खिला रहा है, मतलब क्योंकि वही सेम टाइम से खेला. रोनाल्डो ने पेनल्टी अर्न करके जीत लिया तो. बट आई एम नॉट इम्प्रेस्ड टू बी ऑनेस्ट with United. But Ayush, would you agree that it is similar to Oro, or are you seeing changes? Are you seeing Fred playing well? Are you I'll tell you what the difference is. So against Palace, as you mentioned, it was first match. तो एक मैच में क्या होता है, एग्जाम से पहले रिवाइज करके जाते हैं ना, पर सुबह पढ़ लेते हैं, वही आ जाता है. So they were trying in the first half. That's why we were good against Palace. But then to implement a system, change a system, it takes time. And what he's trying to do, you can clearly see that he wants to play a system. He wants to play the two strikers up front, which are closely playing together. The problem is Rashford is not playing as well because अगर तू विंगर को स्ट्राइकर खिलाओगे तो उसको अडैप्ट करने में टाइम लगता है. Plus he is low on confidence as well. So he was trying to. Greenwood would suit there. So I think Cavani would suit the best there in all these players. But Cavani अभी इंजरी नहीं आ रही, उसकी इंजरी फ्री नहीं है अभी वो. Rashford because I think he is low on confidence. Plus उसको स्ट्राइकर वाला रोल अभी जमने बैठेगा तो टाइम लगेगा. Otherwise, as one thing I'll agree to, Rashford was trying to find Ronaldo in the last match against Norwich. He could have gone ahead and gave it a shot of one. एक दो shot मार सकता था वो. The other problem is the two number 10s. Bruno was playing as a number 10 before. Now he has to cover the wings as well. So that is also an inverted problem. Yeah, correct. That is also a problem which needs time to adapt because Bruno is not someone who has to rotate all these places. और उसका वो है killer ball, winner ball डालने का है. So if you are counting that he's the passes, he's losing the ball, then उसका वो चला जाएगा. So this is something which needs adaptation. Plus Sancho is also winger now. He has to also play and rotate in between center. But I think it will suit Sancho. What predominantly what position he used to play. I think this formation will suit him. Exactly. So if you see in the top 4 attackers, Sancho has been playing the most. It has been playing has been the player of I think in these last 2 matches. Not even Ronaldo. Even I love Ronaldo, but Ragnick ने उसको praise भी किया है previously before joining United के. Sancho is a very great winger and stuff. He has praised him. So I think उसको तो खिलाने वाला है. And two positives out of this, the fullbacks have been good. Telles and Dalot have been good. The two CDMs have been good. Fred is last match against Norwich, 2-3 instances he was like prime Iniesta, rotating, turning, and all these things. I was like, what is happening to him? So, couple of positives are there. It will take time for the attackers to adapt to Ragnick's what style is and what he wants. And he also mentioned. So I think it's important for us to come rather than commenting, listen to what Ragnick says because he makes sense. नहीं उसने बोला तो है हाई इंटेंसिटी हाई प्रेसिंग लाइन पुश करना आगे और आगे इससे प्रेस करना. ओनली थिंग इज प्रेसिंग शुड कम फ्रॉम द फर्स्ट मैन. रोनाल्डो अपना एनर्जी बहुत कंजर्व करता है, मैंने देखा है, बिकॉज़ ही इज वेटिंग फॉर हिज मोमेंट. वो काफी कंजर्व करता है, जब टाइम आता है तो ही रन्स. बट इफ द प्रेस इज नॉन स्टॉप, अगर तू 19 साल का बंदा खिला दे नॉन स्टॉप, मतलब सिर्फ भागते रहे पागल जैसे, तो वो इनिशिएट करता है प्रेस एंड देन बाकी लोग फॉलो करते हैं. ही इज द फर्स्ट मैन ऑन द पिच वहां पे. तो आई स्टिल सी इश्यूज. यस, आई एम नॉट किडिंग. मुझे अच्छा अभी भी लगता है कि भाई रोनाल्डो के बिना टीम ज्यादा प्रेस करे और रैग्निक का स्टाइल फटाफट अप्लाई करेगा. बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. होपफुली रियलाइजेस वी फाइंड द टीम. De Gea is Lord. He is the goalkeeper of the year if I have to give it. Player of the season for United right now. अभी तक तो खिला रहा है अच्छा. Let's see. United का नॉर्मल है ब्रो. Still time to see what happens, how they adapt.
एक्सपेरिमेंट तो कर रहे हैं, मिडवीक में उसने पूरा नया लाइनअप खिलाया, वो भी 1-1 ड्रॉ किया, बट इट वाज ओके. द फुटबॉल इज स्टिल, आई मीन टू सी देयर स्टाइल कंप्लीटली, इट विल टेक लाइक 5 or 6 months टू बी ऑनेस्ट, बट वी कैन स्टिल सी द साइन. तो थोड़ा बहुत आगे प्रेस कर रहे हैं, तो देखते हैं. But the goals should come from me. The goals should come from a lot of players now. It should not be Ronaldo scoring all of the goals, because if that's the case, then Ronaldo is again overpowering the manager. So that will be a sign for me. मतलब short sign. I think whatever you're saying is right, but as long as if the team is only set up that way and he is delivering, I don't think that should be a problem. Just last week what we had discussed, yeah, we clean slate and everybody starts from zero. And now since अभी जैसे if you are Ragnik, तेरे को पता है तेरे पास 6 महीना ही है to impress and maybe to get a, like अगर if I do well in these 6 months, I'll get another 2 years job. And you know, if you have Ronaldo, you have to utilize him in the best way you can, because that's your best bet. So now वो जो point था तेरा वो तो completely सही था, but अब मैं बोल रहा हूँ कि now since he's the new manager and starting से उसको रोनाल्डो के अराउंड बिल्ड करना है, तो I think he will try that only. He will not चलेगा as long as the winning का problem नहीं, because चलेगा. क्योंकि लिए 3 हफ्ता नहीं होगा और मीडिया उसके ऊपर आ जाएगी कि भाई रोनाल्डो को बिठा दिया, क्या गधा है, ऐसा. मतलब नीड तो चढ़ जाएगी वो तो. बट दूसरा स्ट्राइकर भी उसने इसके लिए खिलाया, आई थिंक दूसरा स्ट्राइकर भी उसके लिए खिलाया ताकि रोनाल्डो को कॉम्प्लीमेंट करे, और उसको जब उसका जो चेज और पीछे ट्रैक बैक है ना, दूसरा स्ट्राइकर करे, पूरा ना करना पड़े. अच्छा है, अगर एडजस्ट अडैप्ट कर लिया तो बेस्ट है. बट सीन ये है कि मुझे एक क्वेश्चन पता है क्या लगता है, कि जब रोनाल्डो आया भी था ना, तो हमने 2-3 मैच सिर्फ बेसिकली वाइब पे जीत गए थे. ओल्ड ट्रैफर्ड बहुत एक्साइटेड था, तो ये मैनेजर चेंज है तो भी 2 मैच मुझे लगता है वाइब पे ही जीते. रोनाल्डो ने एक पेनल्टी विन किया और वो थोड़ा लॉन्जिविटी पता चलेगा 1-2 महीने डाउन. मुझे 1-2 महीने भी नहीं, 3-4 मैच के बाद ना आई फील अगर फिर भी रिजल्ट डाउन हो रहा है ना, देन आई विल बी कंफर्म इन माय बिलीव्स कि भाई थोड़ा कुछ ऑफ है. Whatever it is, let's see what happens, and I hope कि रोनाल्डो के साथ सिस्टम अडैप्ट कर ले. वो जैसे आयुष बोला, सेकंड स्ट्राइकर खिला के भी अगर उसका प्रेसिंग का वो कवर हो जा रहा है तो फिर मस्त है. Why not? Win-win situation. Let's hope for the best. अभी तो मैंने टीम में लिया था. I am with you आयुष. फिलहाल 1-2 वीक, because अच्छा, I also wanted to discuss कि जो fixture list आया है, the first 10 games he's managing, I don't think he should even drop any lose points. one of them. I think even if I draw in those match, मतलब तुम्हें नहीं करना चाहिए. If it's Ole, it's Carrick, or if it's Ralf Rangnick, वो matches ही ऐसे कि I don't think इतना favorable fixtures काफी managers को नहीं मिलते. सीधा Chelsea आ गया, Arsenal आ गया, तो काफी Rangnick के लिए काफी अच्छा है in a way. Yeah. So yeah, let's see how you guys do. Yeah. So let's move on to the other team. Let's talk about Chelsea. Midweek थोड़ा उनका, I think they had dropped points, if I'm not wrong. They drew West Ham away and Chakma. Oh, they lost. चकमा ओके. तो दोनों चकमा सही थे. तुम्हारा भी सही था, मतलब वो जो वी आर इन मैन एचपी वेस्ट हैम वाला भी सही था, तेरा भी मेरा भी सही हो गया था. तो यार अच्छा, मतलब वी आर गेटिंग बेटर एट प्रेडिक्टिंग आल्सो गाइस. ये पॉडकास्ट हमें हेल्प कर रहा है टू गेट बेटर एट प्रेडिक्टिंग थिंग्स आल्सो. तो एंड मैं क्या बोल रहा था कि अगर अभी ये वाला कल भी कैसे तैसे जीते उन लोग चेल्सी लीड्स के अगेंस्ट, बट अगर वो भी थोड़ा ऊपर नीचे जाएगा तो अपन जो सीरियस प्रेडिक्ट किए थे कि दिसंबर जनवरी तक थोड़ा ट्यूशल के निकलो. अभी ऑलरेडी चालू हो गया अगस्त. अब्रामोविच कैसे रोंगटे खड़े हो जाते कान वो छोड़. ट्विटर पे लोग बोलने लगे टुचेल का ये क्या हो रहा है, इज नॉट प्रोग्रेसिंग. ट्विटर तो अलग ही भाई. चेल्सी बोलो. लेट्स टॉक अबाउट चेल्सी. रुकना, चेल्सी को अपन चकमा में डालते. लेट्स टॉक अबाउट स्पर्स बिकॉज़ उन्होंने स्टेबल 2 विन लिया. बिग 6 खत्म कर. ओके, लेट्स टॉक अबाउट स्पर्स. इट्स अ गुड वन. ये कॉन्टे भी धीरे-धीरे जो स्टार्टिंग में थोड़े वो कोई तो कॉन्फ्रेंस लीग की टीम से भी हार गया था पिछली सी, अब धीरे-धीरे थोड़ा सॉलिडारिटी ला रहा है. गोल्स कंसीड करना, लीक करना बंद कर दिया है. चाहे 1-0 जीते, वो धीरे-धीरे अपना अथॉरिटी टीम में ला रही है. भाई ऐसा खेलना है मेरे को, चाहे गोल नहीं मारे, दिस इज द फॉर्मेशन, दिस इज. एंड इवेंचुअली धीरे-धीरे ओके, केन इज नॉट क्लिकिंग बट they are getting wins, which is what I think Conte would want. So yeah, ये वीक तो चलो उनका अभी now this Saturday Sunday वाला वो because of COVID issues scrape हो गया गेम, but yeah overall I think Spurs का ये थोड़ा 2-3 गेम का अच्छा फेस बिल्ड कर रहा है Conte. हाँ एग्जैक्टली, जो अपने प्रेडिक्ट किया था वही हो रहा है ब्रो. वो जो 1-1 स्टेबिलिटी वाले विंस होते हैं ना, कि मतलब आराम से रखा है, टीम डिफेंसिवली लीक नहीं कर रही है, और अटैक पे सॉन या तो फिर इंडिविजुअल ब्रिलियंस से जीत जाते हैं. And फिर eventually उसके करते वो 1-0 wins convert into 2-0, 3-0. Important thing for him would be clean sheet in the beginning because he always would want the defense to not leak.
बिकॉज उसी से डिफेंसिव सॉलिडिटी आती है और वो कॉन्टे जैसे मैनेजर्स वैसे उस पे थ्राइव करते हैं। तो और अभी सॉन भी अच्छे फॉर्म में, केन इज स्टिल नॉट इन अ गुड फॉर्म बट एटलीस्ट द टीम इज विनिंग, सो वी कैन नॉट पॉइंट आउट कि केन के बारे में पकड़ के ऐसा। तो सॉन इज स्टिल इन अ गुड फॉर्म। मोरा भी अभी अच्छा, वो गोल आई गेस अच्छा था, मैंने देखा नहीं मैंने, बट बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। एंड भले ही ब्रेंटफोर्ड नॉर्विच है बट पॉइंट्स ऑन द टेबल फॉर स्पर्स एंड दे आर मतलब स्लोली क्लाइंबिंग अप एज वेल। तो देखते हैं क्या होता है। आयुष I think महंगा मोरिनियो। I think clean sheets. Conte would come with that package that we guarantee you clean sheets, non-conceding of goals and everything. What his main issue would be giving probably just say revital to Harry Kane because Gio क्यों जी नहीं रहा है, he's dead. And as soon as I kept him in my FPL, he started blank. He was blanking, but he did not do anything good, so I had to remove him. Then I came back to Sue. अरे भाई रोनाल्डो मतलब सबके पास है एक्चुअली, मतलब अभी निकल जस्ट अभी रिकॉर्ड करने से पहले दिखा किसके पास रोनाल्डो। मैं तो कैप्टन लगा था, मैं देखा सुरेश के पास भी है, मैं देखा आज तेरे पास भी है ना। आयुष ने ऑफिस लिया क्या? केन अभी ये भी घटा चलो के। चलो फटाफट निकालना पड़ेगा फिर। नेक्स्ट वीक इस आउट बार का रोनाल्डो ट्रांसफर किया क्या तूने? अभी निकालो फटाफट। रोनाल्डो इज श्राप प्रूफ। Okay, so that was first. Let's talk about Arsenal also because Arsenal भी थोड़ा बीच में हारा, then again got back to winning ways. अभी तो 3-0 वाला गेम तो बहुत बढ़िया था, कल वाला against Saudi में they could have scored 4-5, I don't know 2-3, twice they hit the post. तो Arsenal का भी थोड़ा चल रहा है ढीले ढाली, but ठीक है। नहीं उनका क्या चल रहा है ना, जैसे आई टोल्ड आर्सेनल का सीन वैसा है कि ये जो लोग हार जा रहे हैं ना, दे आर नॉट रियली कंसर्न्ड अबाउट। आई थिंक आर्टेटा माइट हैव मेड अ पॉइंट इन द ड्रेसिंग रूम कि दिस इज अ यंग, ड्रेसिंग रूम तो बोर्ड को बोल देगा कि दिस इज अ यंग टीम, मतलब दे आर स्टिल गेटिंग विंस इन और स्टेबल विंस मिल रहे हैं। बीच बीच में ऑफ हुआ जाता है, यूनाइटेड के सामने हार गई, एवर्टन के सामने हार गई, पर फिर भी वो स्टेबलाइज होकर जो नेक्स्ट गेम रहता है 3-0 2-0 सेम वैसे स्टाइल से खेलते हैं। स्मिथ रो अच्छा खेलता है, पर उनके फैंस तो काफी टॉक्सिक, मतलब फैंस तो बोल रहे हैं आर्टेटा तो नहीं चाहिए, ऑलरेडी आ गया है फैंस का वर्डिक्ट के लॉन्ग टर्म ट्रॉमा। है। फिर आर्सेनल फैंस का भी यार वो लूप है ना, एवर्टन से कैसे हार गया ये वो। आई थिंक आर्सेनल फैंस सबसे ज्यादा जरूरत है थेरेपी की। उनको इमोशनल बैगेज इतने बड़े हैं कि उनको समझ ही नहीं रहा है ये आर्टेटा का कुछ भी है। प्लस अगेन एवर्टन, आई थिंक इट वाज, आई डोंट नो, रेड कार्ड मिलना चाहिए था एवर्टन के प्लेयर को, वो शायद मिला नहीं मेरे अकॉर्डिंग। बट रिचार्लिसन के 2 गोल चॉक ऑफ हो गए बिकॉज ऑफ ऑफसाइड। आई थिंक वन ऑफ देम वाला मिला उसको, but again उसने मारा, so it was a weird game. Plus I think Yash, you mentioned that Everton when coming off कितने टाइम से नहीं जीते हैं, so they will be playing like full force. So that was it against Arsenal, and I'm sure Arteta also explained his team that it's not just off game because they were all charged up and everything. So that's what they displayed against Southampton. And beating Southampton is good defensively this season. So beating them 3-0 is a good match. Plus you mentioned they hit the post twice with Saka and one more again Martinelli. They could have won the match 5-0. Yeah. Southampton का बस लीकी हो गया अभी धीरे-धीरे। लिवरमेंटो का भी they've been leaky recently और Arsenal मस्त दिया। तो आर्सेनल का थोड़ा टॉक्सिक अभी चल रहा है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। दे कैन गिव अ चकमा एनी डे ऑफ द वीक। मतलब इट लुक्स लाइक अ प्रॉपर 5th 6th फिनिश दिस ईयर फॉर आर्सेनल। इट लुक्स लाइक अ प्रॉपर 5th 6th, या तो फिर 7th भी हो सकता है, बट मुझे लगता है आर्टेटा उतना तो करवा लेगा। बट आर्सेनल फैंस अभी हैप्पी नहीं होंगे ना ब्रो, आर्टेटा का वो प्रोसेस बोल के 5th 6th फिर भी कर रहा है। They would at least expect top 4, which is not wrong for a club like Arsenal. But what is a club like Arsenal anymore now? It is a club like Arsenal is like a top 6 club, not a top 4 club. It is a club without Arsenal. वो एक्सेप्टेंस आने को टाइम लगता है। मैं यूनाइटेड को भी अभी एक्सेप्ट कर लिया मैंने गाइस कि अभी अपन टॉप 4 क्लब है तो है, मतलब चल रहा है 3-4-5 सालों से ऐसे ही चल रहा है। टॉप 4 क्लब है, वी आर नॉट इन द रन फॉर चैंपियंस या ऐसा कुछ, इवन तो अपने एक्सपेक्टेशंस थे इस साल। लेट्स सी व्हाट हैपेंस अभी आर्सेनल का भी क्या होता है। I think that was Arsenal. Heavy. Arsenal से बात करके heavy feel हो जाता है। That was Arsenal without Arsenal. यश ने तो लंबा साथ। I don't want to see that. आर्सेनल वालों के लिए थोड़ा लगता है बुरा, तो इसलिए हम लोग एक टाइम पे मतलब सबका एक सेकंड फेवरेट वही रहने, बिकॉज दे यूज्ड टू प्ले रिस्पेक्ट वेंगर, गुड पॉजिटिव फुटबॉल, पासिंग फुटबॉल एंड स्टफ। हां भले लोग seriously. So yeah, Arsenal से let's move on to from Arsenal to one of the contenders, and for me the probable winners this season, Liverpool. Mohamed Salah bro, मतलब in the form of his life, I think थोड़ा
मतलब वो ये सीजन सबको खाने वाला है, मतलब कोई भी आ जाए सामने, मतलब ही इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। ऐसा नहीं कि लास्ट वीक तो पेनल्टी, मतलब लास्ट गेम में तो पेनल्टी मारा, ऐसा नहीं कि वो तो वाव खेला, बट ही इज he's looking like a different animal this season. I think he can single-handedly win Liverpool the title, ऐसा मेरा ओपिनियन है। आगे कुछ भी हो सकता है, कोई इंजर्ड हो गया, खत्म हो गया, वैन डाइक इंजर्ड, सीजन खत्म, कुछ भी हो सकता है उसको, बट मेरे को तो वही लग रहा है। I am not able to shift my eyes from Liverpool. नहीं, साला इज शाइनिंग ब्रो, जबकि है प्रॉमिसिंग फिर भी, बट वो ऐसा कोई, मतलब लिवरपूल ऐसा इंडिविजुअल ब्रिलियंस वाला टीम है नहीं। ही इज ऑब्वियसली शाइनिंग, तो लिवरपूल बहुत बड़ा बूस्ट है, बट हाँ कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरा टीम फैसिलिटेट करता है एक अच्छे प्लेयर को अच्छा खिलाने में, जैसे एलेक्सिस सैंचेज का सीजन था यार, आर्सेनल में सैंचेज ने छोड़ा वो, बट साला इज नॉट दैट पर्सन, राजा बना दिया था सैंचेज को लगा कि मैं राजा ही हूँ, चला गया यूनाइटेड, हक दिया उन्होंने। साला ऐसा प्लेयर है नहीं, लेकिन साला भाई भगवान का आदमी, उसको नजर पड़ेगा भी नहीं, प्रेज एंड प्लेज एंड उसको नजर लग भी नहीं सकता। ही इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ और अच्छा कर रहा है, लिवरपूल के लिए सही है। हम लोग का होप, लिवरपूल के अगेंस्ट सोचने वाले लोगों का होप सिर्फ है कि एफकॉन में जाए वो लोग जो भी है, तो थोड़ा एक दो मैच के लिए भी थोड़ा डिस्टेबिलिटी आए ना, तो फिर लिवरपूल थोड़ा ट्रेन थोड़ा नीचे हो सकता है, नहीं तो फिर तो भाई चल रहा है। वहाँ पे जाके वापस आके वो सेम फॉर्म में सेम फ्लूइडिटी में खेलना भी डिफिकल्ट है। वहाँ पे गंदे ग्राउंड, मतलब थोड़े मतलब जो उसके टीममेट्स होंगे वो भी उतने वो लेवल पे नहीं होंगे, कैसा फुटबॉल खेलेगा पता नहीं, और वापस यहाँ पे आके क्लब फुटबॉल खेलना, तो वो थोड़ा ऊपर नीचे तो होगा। यू राइट। और साला कैप्टन सेट एंड फॉरगेट ब्रो, फैंटेसी में साला कैप्टन लगा के लोग ने हफ्तों से छोड़ा हुआ है भाई, जो लोग नहीं खेलते ना गेम वो लोग भी स्टेबल है क्योंकि साला कैप्टन छोड़ा हुआ है। तो मैंने चेंज ही नहीं किया साला को, इस वीक भी मैं रोनाल्डो रखने वाला था, मैं भूल गया, मैंने साला छोड़ दिया। साला कैप्टन सेट एंड फॉरगेट, अब ये बोलते ही पता चला 2-3 हफ्ते में चेंज करना पड़ रहा है। तूने एक बार किया ना, रिस्क लिया फिर भी रोनाल्डो के साथ। मैंने 2 बार किया है, दोनों बार मतलब ये टाइम तो ठीक था, दूसरी बार कटा था, केन रख दिया था भाई, अलग हमको रिस्क बहुत पसंद है। केन रख दिया, 2 पॉइंट दिया। वो बहुत टेम्पटिंग था वीक, मेरे को भी याद था, मुझे ऑलमोस्ट केन रख ही दिया था। और विच था ना वो पे कोई भी यार, लिवरपूल आर जस्ट समहाउ मैनेजिंग, I don't know, but they are managing to win. They managed to win against Wolves as well. I thought Wolves should have come out with a draw, but वो मार दिया, Aston Villa के against मार दिया। So according to me, I think I'll agree with Yash on this. I think Liverpool are title champions for me as well, unless and until something major happens, disruption, Salah or Van Dijk gets injured, then only will some halt will come in place. Otherwise, I think they are just running away with it. And the closest challenger would be City. मतलब पूरा स्ट्रांग है ना उनका स्क्वाड, तो भी लग नहीं रहा चेल्सी का, मतलब मेरे को पहले से चेल्सी नहीं लगेगा यार, कुछ खेलने को नहीं आता है। रिपीट की जरूरत है, जो तुम लोग ने हराया ना, तो उन लोग अभी ही गए पूरे, मतलब मेरे को तो वैसे भी डाउट्स था ही उन पे, बट वो जरूरत था कि कोई तो हराया और बाकी लोग हिल जाए, और अभी पूरे ही गए। मेरे को तो कल भी जो जीते लीड्स के अगेंस्ट, दे वर नॉट दैट कन्विंसिंग। हाँ, लिवरपूल पहले तो मैं बोलूंगा लिवरपूल इज हैंगिंग ऑन, बट क्रिसमस पीरियड के लिए ठीक है भाई, 1-0 विंस ऑनेस्टली, क्योंकि अभी 3 दिन में मैचेस आने वाले हैं ना, तो सबकी फटने वाली है, तो जो भी 1-0 निकाल रहा है तो समझ जा। और आई थिंक ऐसी टीम्स वुल्व्स एंड ऑल विल थ्राइव, क्योंकि वो लोग का डिफेंस सॉलिड है अभी, तो वो लोग अच्छा कर रहे हैं, दे विल गेट रिजल्ट्स। चेल्सी का स्टार्टिंग में मुझे तो भाई माने और साला खिलाता है, मर जाए तो भी खिलाएगा हाँ, उनको व्हीलचेयर पे भी खिलाएगा। माने मर जाए तो सोचना, व्हीलचेयर पे डाला के, मतलब भाई वो रुकता है, कभी बेंच नहीं करता उनको। 3 मैच क्या 2 दिन में मैच हो तो भी साला माने तो खेलेंगे। और आई डोंट थिंक वो लोग को बैठना भी होगा, वो लोग टाइम के प्लेयर हम लोग खेल लेंगे, हमको अपने जैसे अपने बच्चों के अगेंस्ट खेलते हैं, जाके पार्क में खेलना खेल लेंगे भाई। लेकिन सोचना वो लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस, 3 दिन में 90 मिनट्स खेल रहे, तो क्या लेवल पे सैक्रिफाइस होता होगा यार। सिर्फ खेल रहे 2 दिन रेस्ट मार रहे, खेल रहे 2 दिन रेस्ट कर रहे, अलग लेवल प्रो मैक्स है उनका अभी। रिकवरी मतलब वो आइस वाला बात में बैठ जाते होंगे और सो जाते होंगे, बैठते नहीं उधर ही आइस बात में सो जाते होंगे। इसके अलावा और इसीलिए अबे इसलिए थ्राइव भी कर भी रहा है ना वो बंदा, भगवान का है, वो अच्छा डिसिप्लिन्ड लाइफ जीता रहेगा, इसलिए मतलब हर सीजन आफ्टर सीजन क्या रिप्ड बंदा है भाई, वो अपनी बॉडी पे कितना काम करता है साला, कंसिस्टेंट है साला, दिल पे ले लिया दिल पे ले लिया उसने ब्रो, ये सीजन उसको मारना ही है। पता है अंदर से बुरा क्या लगता है कि अगर वो पूरा सीजन भी इतना अच्छा खेलेगा ना, तो बैलन डोर में कुछ और ही हो जाता है, और मतलब बैलन डोर वो है ना भाई, अच्छे भले आदमी पॉजिटिव वाइब्स के ऊपर मिलता है, परफॉर्मेंस पे नहीं देगा साला को, तो फिर चांस है ना फिर
अबे नहीं बे, प्रीमियर लीग जीतेगा अभी इस तो सीजन तो चांस उस मतलब वही है नंबर 1 अभी से ही नंबर 1 वही है तो कोई है ही नहीं उसके आसपास ही नहीं है है, तो बट लेकिन ये पूरा सीजन भी अगर प्रूव करे ना वो, तो भी मुझे लगता है बैंगलोर करीम को भाई है ना, करीम हल्का ही भाई, कर देते हैं वो लोग। करीम भाई अच्छा करीम कर रहे भाई हैं। नहीं करीम उसके भाई तो गोल और अच्छा तो असिस्ट कर रहे हैं सिमिलर पास में ही है, साला से ज्यादा दूर नहीं है। क्या बात कर रहा है करीम भाई? करेक्ट करीम भाई भगवान के बंदे हैं भाई, करीम। करीम मोहम्मद और तीसरा भी कोई ऐसा जीसस ना आ जाए भाई भाई कि गैब्रियल टॉप 3 जीसस। बैलेंड जीत रहा है इसमें से साला या ईयर कोई ऑफ गॉड। चकमा पे करते हैं so yeah, I चेल्सी। think that was Liverpool. Let's move on to the Chakma of the week, Chakma team of the week. Let's say Chelsea. तो पता नहीं मेरे को आई थिंक दे विल ऑब्वियसली चैलेंज वो तो है मतलब वो आई थिंक ओवन They'll come third माइकल ओवन ने according to me. हाँ माइकल ओवन ने पॉइंट आउट किया कैट एंड माउस का रेस होने वाला है व्हिच इज द एप्ट वे टू पुट इट कि वही होने वाला है कभी ये आगे ये पीछे ये आगे ये पीछे बट आई डोंट थिंक आई सी चेल्सी विनिंग एट द एंड ऑफ द सीजन बट या थॉट्स अबाउट चेल्सी अभी यस तूने ना ये फुट मैच मतलब जो तूने डाउट्स बोल दिए ना, वो मेरे दिमाग में आया तो बड़ा मुझे तो है क्योंकि मैंने बोला था चेल्सी स्टार्टिंग में लग रहा है लीग टाइटल कंटेंडर्स, बट तूने बोला है तो हाँ थोड़ा 2-3 हफ्ते से मुझे भी इंस्टिंक्ट आ रहा था कि थोड़ा सा मतलब हिल रहा है शिप, थोड़ा सा हिल रहा है। और ट्यूशेल का पता नहीं 1 साल के अंदर तो नहीं अच्छा, यूजुअली मैनेजर का हाफ लाइफ मतलब मैनेजर्स का लाइफ कितना होता है, शेल लाइफ थोड़ा 1.5 साल चलता है, 1.5-2 चेल्सी में साल। तो कम ही होता है चेल्सी में तो कम ही होता है, पर अभी और कम ना हो जाए, 1 साल में मैनेजर पे डाउट चालू हो जाए तो। बट हाँ चेल्सी के रिजल्ट थोड़े डाइसी हो गए, और अगर ये पीरियड जो 3 दिन के मैचेस है उसमें अगर चेल्सी गिरे और गिरना चालू करे तो फिर गंदा गिरेगी, एंड फिर उन लोग का ट्रस्ट इश्यूज भी हो गया, लुकाकू को खिलाते हैं नहीं खिलाते हैं, कोई टीम कोई। और अभी उनका फुल बैक का जो सिस्टम था ना, टीम्स ने पकड़ लिया। प्रीमियर लीग इज वेरी स्मार्ट, इफ यू स्टार्ट प्लेइंग अ सर्टेन सिस्टम पीपल विल अडैप्ट टू योर सिस्टम। अभी फुल बैक का सिस्टम पकड़ लिया, जेम्स का जेम्स भी नहीं कर पा रहा अभी। अरे जेम्स लिया क्या तूने बहुत टाइम से पहले था, फिर मैंने तब भी लिया, से फिर वो अभी 5-4 तब भी से वो चलना बंद हो डाउनफॉल में गया उसका उसका। डाउनवर्ड स्पाइरल तब भी से चालू हुआ हाय, उसका अपन एक नया पॉडकास्ट खोलते हैं, आयुष सिर्फ प्रेडिक्शन दे, मैंने ये टीम डाली है, तेरे टेम्पलेट लेके ये नहीं बनाना टीम करके जीतेंगे, मैं सच बोल रहा हूँ, नंबर 1 विनर वही और आएगा। अपन देखेंगे कौन टॉप पे फिनिश करेगा मैं आता हूँ तो चेल्सी वेस्ट हैम वाज गोइंग टू बी अ ड्रॉ, गोल मारा मसुआकू ने, असिस्ट किसको मिला, एंटोनियो को, मैंने उसी वीक उसको निकाला था, वो असिस्ट भी नाम का, सिर्फ बॉल छू के दे दिया था उसने और मटका गोल मार दिया था। मसियाको का सब वागल वागल कर रहे हैं बट वो कत्ते ही वो क्रॉस डालने गया है वो मटका था, शूट नहीं लिया बंदे ने शूट नहीं लिया है दैट वाज अ फ्लूक गोल, ये दैट खुश हो वाज अ गया, फ्लूक असिस्ट। क्यों? क्योंकि मेरी टीम में नहीं था, इसीलिए चेल्सी वहां पे हारी, वरना ये उसको खुश एक हुआ, पॉइंट ग्रुप मिलता में था। बोला कि एंटोनियो का पॉइंट्स आ गया, और एंटोनियो अभी तक पक्का मारेगा बर्नली के अगेंस्ट में, बर्नली के अगेंस्ट नील ऑल ड्रॉ, कुछ नहीं किया एंटोनियो। ये जैसे वो खुश होकर बोल भी देता है ना, ये बोल भी दे रहा खुश होकर कि भाई ये अच्छा करेगा, हक देता है वो बंदा। तू मतलब कुछ भी बोल देगा मैच के पहले भी नहीं हो रहा है। Against Leeds also, I think Chelsea got lucky. Leeds played well to hang on to a draw. वो last penalty मेरे को लगा बहुत 2 soft पेनल्टी मिल गया यार वो भी दोनों किसने विन किया रूडीगर थोड़ा सॉफ्ट था, एंड आई थिंक ऑल 4 क्लब्स को थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट मिला है पेनल्टीज, चेल्सी, यूनाइटेड। थोड़ा वीक पेनल्टी वीक था अपन कुछ कैप्शन ऐसा दे सकते स्पेशल मेरे को आइडिया आया था अच्छा आयुष ने याद दिलाया पेनल्टी वीक, हर टॉप 5 टॉप 4 को सबको पेनल्टी से जीते हैं दिस वीक एंड आई थिंक वो एक्सक्लूडिंग आर्सेनल ट्रेंड भी इसलिए होगा क्योंकि अभी जैसे मैंने बोला विंटर ब्रेक्स आ रहे हैं ना, तो थोड़ा टीम कॉशियस, दिमाग टीम के बैक ऑफ द माइंड में भी रहता है। आई मीन नॉट मैनेजर्स लाइक पेप एंड क्लॉप, लाइक मतलब लाइक एवरीबॉडी से वो लोग हर मैच के बाद बारे में ही सोचते हैं, दे डोंट थिंक अबाउट क्या आ रहा है क्या जा रहा है शेड्यूल क्या है, बट लाइक अदर टीम्स माइट हैव दिस इन द बैक ऑफ देयर माइंड कि कंजर्व करना है थोड़ा एनर्जी, थोड़ा क्या बोलते हैं पेसिमिस्टिकली नहीं, क्या वर्ड क्या है, थोड़ा सा कॉशियस होकर खेलना है। एंड ऐसे विंस, थोड़े स्क्रैपी परफॉर्मेंस बहुत दिखने वाले हैं इन द नियर, वो स्क्रैपी भी, और कोई गेम्स अचानक से एक्साइटिंग हो जाएंगे, जैसे 5-5 चल रहा है, 5-4 में, और बाकी सब ऐसे 1-1 ऐसे अचानक में होने वाला है, एक्सट्रीम्स में जाने वाला है, तो इट इज अपॉन अस टू पिक व्हिच गेम वी आर वाचिंग एट व्हाट टाइम। तो या एग्जैक्टली लीड्स भी आई थिंक लीड्स बाकी जो अदर टीम्स में से एक दो मेंशन जो कर सकते हैं ब्रेंटफोर्ड उनका है थोड़ा बहुत सही चल रहा है, दे हैव लाइक वन अ फ्यू गेम्स, बाकी तो क्या न्यूकैसल है लूजिंग। हाँ बोल एम्बुएमो निकाला मैंने, हाँ, लास्ट वीक असिस्ट दिया, इस वीक पेनल्टी मारा, विनिंग पेनल्टी 95th मिनट पे। मैं तो बोलता हूँ एपिसोड का नाम यही रखते हैं, आयुष लकी आयुष, मैं तो सच बोल रहा हूँ, ये कैप्शन है, ओए लकी ओए वैसा लकी
ब्रेंटफोर्ड का फॉर्म जा रहा था बट इट सीम्स लाइक अभी क्या विन निकाला ना वो लोग ने, श्योर क्या। हाँ मैंने दिया ना टोनी भैया आशीर्वाद नहीं है इसलिए। ना, इसलिए टोनी भैया बाहर है इसलिए। मेरे को वुल्स के बारे में बहुत इंटरेस्ट रहता है हमेशा, क्योंकि वो मैनेजर मुझे अच्छा लगता है, टैलेंटेड लगता है। और मतलब जब वो लोग अच्छा मतलब रिजल्ट्स नहीं भी निकाल रहे तो भी वो लोग बहुत ड्रॉ भी ऐसा 1-0 हार रहे, लिवरपूल जैसी टीम से 1-0, मैन सिटी से 1-0, व्हिच इज गुड साइन। तो वो I मुझे think the टैलेंटेड लगता है problem Wolves are मैनेजर। facing is the lack of scoring. Everything they defensively they are very sound, but they are not able to score. वो लास्ट 5-6 मैच में एक गोल मारा उन्होंने सिर्फ। हाँ And वो अडामा ट्राओरे मेरे को लगता है कि बस he is like a Red Bull running. He doesn't do anything. उसे भागने को दे दो तो उड़ा देगा रास्ते में से लोगों को, ब्रो, बट वो गोल हैरी नहीं पॉटर में मारेगा। मेहनत कश नहीं होता, वो स्लिदरिन में मेहनत कश वाले थे ना, अलग ही हाउस था। गुरुद्वार मेहनत कश, तो ट्रायोरे मेहनत कश वाला बंदा है। और हिमेनेस फॉर्म में आने को टाइम लगेगा, मतलब वो है फॉर्म में, थोड़ा असिस्ट देता है अभी, बट फिर भी उस हेडबैंड निकलेगा, प्रॉपर कॉन्फिडेंस में आएगा ना। एंड देन आई प्रेडिक्ट ब्रूनो Plus, लार्सनर नेक्स्ट ईयर ब्रो पक्का टॉप 6 में आएगा बोल के। attacking wise, he's not sticking. I know his system is he's not able to cope with the system which he wants to play. So sometimes he plays two strikers, then sometimes one and one behind, and defensively. So that's why probably he's just trying to play cautiously and just secure points, then go ahead for the score. तो पढ़ नहीं रहे अभी। Also, yeah, अब वुल्स तो हो गया, ब्रेंटफोर्ड हो गया, एक लेट्स टॉक अबाउट वेस्ट हैम बिफोर वी एंड दिस, बिकॉज मॉयस भैया का जादू तो चल रहा है भाई। मतलब चेल्सी को भी हराया, चाहे कैसा भी हो, चकमा ही हो, बट आई नो वेस्ट हैम की बात थोड़ा, आई थिंक टॉप 6 तो है, उन लोग भी है वो कॉन्वर्सेशन में। नहीं, वेस्ट हैम का सीन क्या पता है, अब मॉइस का ये क्या, मॉइस इज अ गुड कोच, क्योंकि मेरे को याद है मैं थोड़ा सा कोचिंग के बारे में कर रहा था ना रिसर्च, मतलब पढ़ रहा था कि मैं अपना फिलोसफी बनाना चाहूँ तो कैसा बनाऊंगा। तो मॉइस का मैंने वीडियोस देखा था 2-3 प्रेसिंग के बारे में, वो बहुत कॉशियसली प्रेस करा था, लेकिन ही हैज अ गुड सिस्टम कि कैसे करना है। वो वैसा नहीं हमेशा हाई मेटल हैवी मेटल नहीं है, बट वो प्रेस इनिशिएट में बिलीव करता है कि मतलब एक बंदा इनिशिएट करेगा ना, स्ट्राइक इनिशिएट करेगा तो फिर लेफ्ट विंग और राइट विंग सबके लिए वो सिग्नल है कि जैसे इनिशिएट करे वो प्रेस तुम लोग को भी जाना ही है। उसने इनिशिएट कर दिया प्रेस, तुम लोग नहीं गए तो कोई फायदा नहीं, टीम की सिनर्जी में नहीं है, ट्रिगर टाइप। तो मॉइस का कोचिंग अच्छा है एंड ही इज लाइक प्रॉपर्ली टेक्निकल। तो उसकी टीम्स भले ही थोड़ा बहुत पैचेस के थ्रू जाए, जैसे अभी रिसेंटली गया था थोड़ा पैचेस के थ्रू, आई एम श्योर दे विल पिक इट अप। चेल्सी को हराया और वापस आएंगे, दे आर गोइंग टू बी इन द मिक्स, और टॉप 4 तो पक्का देने वाले फाइट 4th 5th के बीच में। एंड और मॉइस ऑनेस्टली वो उसका क्या बोलते हैं हैबिटेट है भाई, 4th 5th के लिए फाइट करना, वो पता है उसको कैसे करना है, he knows that, fortunately he's realized that again, और अभी वो वही कर रहा है। West Ham is playing well, एंटोनियो भी थोड़ा फॉर्म में आ जाए तो फिर तो अलग ही है, क्योंकि एंटोनियो इज नॉट रियली इन फॉर्म राइट नाउ। वो फॉर्म में हिट करे तो गया फिर, तब तो फिर अच्छा ही खेलता है। इसने निकाल दिया है ना बस, अभी अगले वीक से देख जादू एंटोनियो का। I think West Ham ले मत पूरे सीजन, West Ham थोड़ा slack off होगा मेरे हिसाब से, because they won't be top 4 because United has to go there, that's why. So West Ham, Arsenal and Spurs will be fighting for the 5th, 6th and 7th. Anyone can finish in the 5th, 6th and 7th, and they'll be in Europe, but they won't finish in the top 4 because probably quality nahi hai bench mein, and the playing 11, 12, 13, 14 players which they play, they depend on that and they try to win the match with that. Burnley against draw ho gaya, so that shouldn't be a draw if they want to challenge for the top 4. So I think a little slack off will be there, and that's why they'll finish in the 5th, 6th and 7th position. दिसंबर में जज करना टीम के टफ है, लेकिन सर एलेक्स बोलते थे ना कि दिसंबर और जैन के पीरियड में जो थोड़ा निकाल लेता है ना, जो दिसंबर जैन निकाल लेता है वो जीत जाता है। तो वो तो है, एंड आई थिंक वो लोग टॉप टीम्स को जो ज्यादा टफ देते हैं, पर छोटे वालों के साथ थोड़े ज्यादा हल्के में ले लेते हैं। हाँ, वो है थोड़ा इशू। आई थिंक दैट we'll have to see how that pans out. So yeah, I think that was more or less of it for this week. So anything you guys want to end it with, any special comment या रागनिक का कोई क्वेश्चन थ्रो करना है तुम्हारे यूनाइटेड फैंस के लिए? मेरे को एक क्वेश्चन थ्रो करना है कि लाइक आई एम, क्योंकि ये जेन्युइन क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी है, एंड आई लाइक टू पुट इट अप टू पीपल, बिकॉज़ व्हाट डू यू गाइस थिंक, विल रोनाल्डो हैव टू बी ड्रॉप्ड फॉर हिम टू रियलाइज कि उसके बिना ही अच्छा खेल रहे हैं, और विल ही अडैप्ट विद रोनाल्डो इन प्लेस? एंड हाँ, यही तो मतलब ये क्वेश्चन है। विल but before asking these two questions, you'll have to ask, because I don't think people are of the belief that Ronaldo is the problem. So you'll have to ask that first, and then the two questions. Because okay, let's frame करता हूँ. Considering Ronaldo is the problem. Considering Ronaldo is the problem, what would you think? Will he adapt by dropping him, or will he adapt with keeping him, and then he'll adapt the system around him? What do you think? I genuinely want to know, because I'm confused.
and बस ये आयुष I'll answer. कमेंट्स पे कर, कमेंट्स में आंसर कर, start पॉडकास्ट में कुछ तो कमेंट आने दे, मत कर, इसमें मत कर, कमेंट्स में आंसर कर। Today, no +1 +1. I'm of the opinion of the exact opposite of what Suyash is saying. But yes, I would love to hear someone else's opinion and someone else battering Suyash and joining my team in this. I'm pro Ronaldo, so I would love to hear anyone who has any comments around this. And it's Ragnick's time now, so we would love to hear how you like his type of football, how you like us going ahead, and what you want us to comment upon. Okay, I'll sum this up. So anybody who's watching this and would like to comment, so drop a comment if your team, Suyash or team Ayush, in respects to how ये तो वैसी बात हो गई जो रोनाल्डो के अगेंस्ट बोलना, मतलब लाइक फॉर आयुष एंड कमेंट फॉर सुयश, तो लाइक ही जाने वाला है। ये तो एटलीस्ट इंटरेक्शन आएगा, इंटरेक्शन तो आएगा, बस हमको पता है लोग इसमें भी मतलब लोगों को ऐसा ही चाहिए। हाँ भाई मैं तो यही चाहिए, वरना तब तक लोग थोड़े अरे मैं दूं कि नहीं दूं, कमेंट दूं कि नहीं दूं। और ऑल्सो गाइस लास्ट एपिसोड जिसने भी देख रहा है, जो भी रेगुलर, जो भी हम लोग 30 लोग देखते हैं, 30 व्यूज वाले, उनको बोलना चाहूंगा कि लास्ट टाइम हम लोग ने सू का स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, मुझे रियलाइज किया क्या गवार सोचेंगे लोग ग्रामर में, मैंने SUII लिख दिया, वो सी होता है ना, सी जो भी है। हाँ यस, वो इमोशन मैटर्स, सी हो या टी हो, क्या आयुष नहीं तो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब, थोड़ा प्यार बांटो, थोड़ा हम लोग को भी 30 से 32 व्यूज दिखे तो अच्छा लगे। तो हम लोग ज्यादा नहीं मांग रहे, 30 से 50 मांग रहे, जो भी ज्यादा करेंगे तो बूंद बूंद से सागर बनता है, बूंद से तो मतलब कम से कम 20-50 तक हम लोग पहुंच जाएंगे। हाँ कहीं तो पहुंच जाएंगे, चलेगा ठीक है। It was a fun session guys, let's meet next week and till then take care boys. Take care boys, see you.